Good morning, students. In today's lecture, we would be completing the remaining portion related with the anatomy of the middle ear. Arterial supply, जो है middle ear की, it is mainly by the external carotid artery, branches of the external carotid artery, and also by few tympanic branches from the internal carotid artery. So जो सबसे पहली branch है external carotid artery की, which is the maxillary artery, वो मैक्सिलरी आर्टरी एक ब्रांच देती है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच जो कि एंटर करती है मिडल ईयर कैविटी को थ्रू दी पीट्रोटिम्पैनिक फिशर. दिस इज द रीजन ऑफ द पीट्रोटिम्पैनिक फिशर. थ्रू दिस द एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच एंटर्स इनटू द मिडल ईयर कैविटी. Another branch is the posterior tympanic branch, which is branch of the stylomastoid branch of posterior auricular artery. Posterior auricular artery is also branch of the external carotid artery, and it enters into the middle ear cavity through the stylomastoid foramen. In this figure, this is the norma basalis view of the skull, and you can see here this is the stylomastoid foramen present in between the styloid process and the mastoid process. और यहीं से इसी foramen से जो posterior tympanic branch है which is branch of the stylomastoid branch of posterior auricular artery वो enter करती है and it supplies the middle ear cavity. Other arteries are the middle meningeal artery which is branch of the external carotid artery. It gives away the petrosal branch and the superior tympanic branch. Ascending pharyngeal artery is also branch of the external carotid and वो भी branches देती है middle ear cavity को. And apart from the external carotid, it is supplied by the tympanic branches of the internal carotid artery. In this figure here, you can see this is the middle meningeal artery and it gives away many branches, and this is the petrosal branch that supplies the middle ear cavity. Venous drainage होता है into the superior petrosal sinus and the pterygoid plexus of veins. Various veins they meet here and form a plexus which is known as pterygoid plexus. No, it is known as pterygoid plexus because it is present in between the lateral pterygoid muscles, which are important muscles of mastication. उसी तरह से यहाँ इस फिगर में बहुत सारे आपको ड्यूरल वेनस साइनसेस दिख रहे हैं. दिस इज़ द सुपीरियर petrosal sinus जहाँ पे मिडल ईयर कैविटी के वेन्स ड्रेन करते हैं, and it is named so because it is present in the petrous portion of the temporal bone on the superior side. So it is known as superior petrosal sinus. There are other sinuses as well like the sigmoid sinus, the inferior petrosal sinus. Lymphatics drain करते हैं into the preauricular and the retropharyngeal group of lymph nodes. Nerve supply जो होती है middle ear cavity की is by the tympanic plexus which lies on the promontory. Tympanic plexus nerves जो हैं basically tympanic plexus is बहुत सारे nerves different जगह से आगे वहाँ collect होते हैं and it forms the tympanic plexus. तो जो nerves contribute करते हैं tympanic plexus के formation में वो nerves हैं tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and also the lesser petrosal nerve, and sympathetic plexus से भी contribution आता है, that is the superior and inferior keraticotympanic nerves. They are present around the internal carotid artery. ये सब मिल के बनाते हैं tympanic plexus जो कि supply करता है middle ear cavity को. Clinical conditions associated with the middle ear cavity. So the first, अगर फ्रैक्चर होता है मिडिल क्रेनियल फोसा का, बिकॉज जो रूफ है मिडिल ईयर की जो रूफ है जो कि बनती है बाय टेगमेंट टिम्पेनाई, वो टेगमेंट टिम्पेनाई मिडिल ईयर को सेपरेट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा में जो ड्यूरा मैटर है उससे. सो अगर मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो जाए तो उसके जस्ट नीचे जो रूफ है मिडिल ईयर की वो ब्रेक हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो लीड टू द रप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसके वजह से ब्लीडिंग हो सकती है ईयर से और डिस्चार्ज हो सकता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का.
CSF इज cerebrospinal fluid इज अ टिश्यू फ्लूइड और ये प्रेजेंट होता है इन द सब एरिकनॉइड स्पेस एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन. तो तीन बेसिकली मेनिंजेस होती हैं जो ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं. बाहर से अंदर हम जाते हैं तो ड्यूरा मैटर, दैन द एरिकनॉइड मैटर एंड द पिया मैटर. तो ये तीन मेनिंजियल लेयर्स हैं. और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये प्रेजेंट होता है सब एरिकनॉइड स्पेस में, दैट इज बिलो द एरिकनॉइड मैटर एंड ऑल्सो इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम. तो इस CSF का भी ड्रेनेज होगा थ्रू द ईयर. ईस्टीशियन कैटार हमने पढ़ा था. एंटीरियर कम्युनिकेशन ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी इज थ्रू द ईस्टीशियन कैटार. इट कनेक्ट्स विद द नेजोफैरिंग्स. तो इस कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा थ्रॉट में या कोई इन्फेक्शन होगा नेज़ल कैविटी में तो वो थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब ईयर तक पहुंच सकता है. सो ईस्टीशियन कैटार इज बेसिकली कॉमन कोल्ड के वजह से सेकेंडरी टू कॉमन कोल्ड इन्फ्लामेशन हो सकता है ऑडिटरी ट्यूब का. और अगर एक बार ऑडिटरी ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच गया तो वो ईजिली ईयर भी जो है साथ में वो इन्फेक्ट हो जाएगा. पेन होने लगेगा, swallowing के टाइम पे पेन होगा बिकॉज ब्लॉकेज इन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कंडीशन जो थ्रॉट इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके वजह से इन्फेक्शन अगर ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर तक पहुंच गया तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ओटाइटिस मीडिया. इट इज़ अ वेरी कॉमन infection associated with the middle ear cavity. Media is middle ear and otitis is the inflammation of the middle ear. So middle ear cavity में inflammation हो जाएगा, pus formation, pain in the ear, swelling and fever भी हो सकता है. There is acute otitis media and there is chronic otitis media. अगर chronic otitis media develop हो गया है तो persistently pus जो है वो discharge होगा through the ear. In this figure here you can see this is the normal ear, the normal middle ear cavity. And in this figure you can see the middle ear cavity is inflamed, it is full of pus. So अब इस pus के कुछ complications हो सकते हैं. अगर पस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इरोड कर दे, रप्चर कर दे तो ये एक्सटर्नल ईयर के थ्रू ड्रेन हो जाएगा. इफ़ इट इरोड्स द रूफ, अगर रूफ को टेगमेंट टिम्पेनाई को इरोड कर दे तो ये सीधा ब्रेन तक पहुंच जाएगा. ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजेस वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा, इट विल लीड टू मेनिंजाइटिस. और ब्रेन में पस कलेक्शन कर सकता है, सो ब्रेन एब्सिस कॉज कर सकता है. ये फ्लोर को अगर इरोड करता है तो जो वेनस साइनसेस हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस, मोस्टली द सिग्मॉइड साइनस, वहाँ पे ये थ्रोम्बोसिस कर सकता है. इंटरनल जुगुलर वेन तक पहुँच सकता है ये. एंड पोस्टीरियर वॉल जो है, पोस्टीरियर साइड पे अगर ये बैकवर्ड्स जो है स्प्रेड होता है तो इट कैन लीड टू मैस्टॉइड एब्सिस. मैस्टॉइड एंट्रम है, मैस्टॉइड एयर सेल्स है, वहाँ पे पस का कलेक्शन. एब्सिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पस. सो मैस्टॉइड एब्सिस इज अ सेकेंडरी, इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. इस सिचुएशन में मैस्टॉइड एंट्रम से, मैस्टॉइड एयर सेल से जो ड्रेनेज है वो बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ता है थ्रू द सुप्रामीएटल ट्राइंगल. इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज़ द एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीएटस और इसके ऊपर एक ट्राइंगुलर एरिया है. और बिकॉज ये एरिया मीएटस के ऊपर है इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रामीएटल. और बिकॉज ये ट्राइंगुलर इन शेप है दैट इज़ वाई सुप्रामीएटल ट्राइंगल. तो इसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है टू ड्रेन द पस फ्रॉम द मैस्टॉइड एयर सेल्स. और इस ऑपरेशन में मेनली फेशियल नर्व इंजर ना हो जाए. लोकेशन ऑफ द फेशियल नर्व जो है बड़ा नज़दीक है तो वो इंजर ना हो, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है. और अगर
मैस्टॉइड एयर सेल्स में, मैस्टॉइड एंट्रम में इन्फेक्शन है तो वो स्प्रेड कर सकता है टू द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम का वो पार्ट जो टेम्पोरल बोन के साइड है, दैट इज द टेम्पोरल लोब, एंड इट कैन इन्फेक्ट द सेरिबेलम एंड द सिग्मोइड साइनस. ये सब पार्ट्स जो हैं ये रिलेटेड हैं विद द मैस्टॉइड एंट्रम एंड मैस्टॉइड एयर सेल्स. तो नज़दीक के जो एरिया हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन इज दी ऑटोस्क्लेरोसिस. सो ऑटोस्क्लेरोसिस में बेसिकली एक टाइप का कंडक्टिव हियरिंग लॉस है. इसमें डेफनेस हो जाती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं, टिनिटस हो जाता है. टिनिटस इज दी परसेप्शन ऑफ साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल साउंड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. उसमें विस्लिंग साउंड या बजिंग साउंड या रिंगिंग साउंड जो हैं उसको सुनाई देते हैं, जो कि एक्चुअली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो ये कंडीशन बेसिकली क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ बोनी फ्यूजन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज एंड द मार्जिन ऑफ द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई. तो यहाँ आप देख सकते हो, ये स्टेपीज है, फुट प्लेट है स्टेपीज की, और ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई. ये जो स्टेपीज की फुट प्लेट है ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई को क्लोज करती है, लेकिन ये उससे फ्यूज्ड नहीं है. ये स्टेपीज की फुट प्लेट फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के मार्जिन से फ्यूज्ड नहीं है, सिर्फ उस विंडो को, ओवल विंडो को क्लोज करती है ये. लेकिन ऑटोस्क्लेरोसिस में ये फ्यूज हो जाती है. सो इस बोन का फ्यूजन हो जाता है विद द मार्जिन ऑफ द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई. और अगर ऐसा हो गया है तो उसके वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो कॉक्लिया तक नहीं पहुंचती हैं. और जब साउंड वेव्स यहाँ स्ट्राइक करती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो इन 3 ईयर ऑसिकल्स का वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड वेव्स है वो इनर ईयर तक जाती है. अगर स्टेपीज यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, मार्जिन से बिल्कुल फ्यूज़ हो जाएगा, तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा. और अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो जो साउंड वेव्स है वो आगे इनर ईयर तक नहीं जाएगी. एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज ऑटोस्क्लेरोसिस, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो मिडिल ईयर से इनर ईयर तक कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो गया. Another clinical condition associated with the middle ear is the hyperacusis. Acusis is the ability of hearing. और हाइपर में ये जो एबिलिटी है वो पेनफुली, जो पेशेंट है वो पेनफुली सेंसिटिव हो जाता है इवन टू द नॉर्मल साउंड. और ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इट इज़ बिकॉज द पैरालिसिस ऑफ द स्टेपीडियस मसल. जो स्टेपीडियस मसल है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये स्टेपीज़, क्योंकि ये स्टेपीज़ पे इंसर्ट होती है, स्टेपीज़ के नेक के पोस्टीरियर सरफेस पे ये इंसर्ट होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगी तो स्टेपीज़ को ये बाहर की तरफ, इट पुल्स द स्टेपीज़ आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉक्लिया. जो स्टेपीज़ की फुट प्लेट है उसको कॉक्लिया से वहाँ से ये दूर लेके आती है, आउटवर्ड्स लेके आती है. एंड दिस इज़ द एकाउस्टिक रिफ्लेक्स. ये एक प्रोटेक्टिव टाइप की एक रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से कोई भी इरेशनल साउंड इनर ईयर तक ना पहुँचे. तो बेसिकली जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं स्टेपीज़ में, उनको कंट्रोल, उनको रेगुलेट करती है स्टेपीडियस मसल, ताकि एक्सेसिव लाउड इरेशनल साउंड्स इनर ईयर तक ना पहुँचे. लेकिन अगर ये मसल पैरालाइज हो गई है तो जो मूवमेंट है स्टेपीज़ का, दे आर डैम्पन्ड, और बिकॉज ऑफ विच साउंड गेट्स डिस्टॉर्टेड और बहुत ही हाई हो जाता है इन वॉल्यूम, जिसके वजह से जो पर्सन है बिकम्स पेनफुली सेंसिटिव टू इवन द नॉर्मल जो साउंड होता है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देता है. एंड this condition is known as hyperacusis. So with this we come to an end of anatomy of the middle ear. Thank you so much.